अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी चेक। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है। एक कहानी ज़िंदगी और मौत के दरमियान उस पल की है जहाँ सब कुछ रुक जाता है और फिर दोबारा शुरू होता है। और दूसरी कहानी है क्रिकेट की दुनिया से, जहाँ एक नाम ख़त्म होता है और दूसरा वापस ज़िंदा हो जाता है। एक तरफ एक औरत जो डॉक्टर्स के मुताबिक सिर्फ 50% चांसेस के साथ ज़िंदा थी, लेकिन कहती है कि उसने दूसरी तरफ देखा है। और दूसरी तरफ पीएसएल की दुनिया, जहां सियालकोट स्टैलियंस के नाम ख़त्म हुआ और मुल्तान सुल्तान्स दोबारा सामने आ गया। आज हम बात करेंगे सर्वाइवल की भी और रिवाइवल की भी, एक पर्सनल कमबैक और एक कमर्शियल कमबैक। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से, जो शायद आपको ज़िंदगी को थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर करे। अ जर्नी टू द अदर साइड एंड बैक। क्या आप सोच सकते हैं कि मौत और ज़िंदगी के बीच का पल इतना रियल हो सकता है? 43-year-old Amber Kavanagh was in bed with her husband and when she suffered a double stroke, causing extreme brain hemorrhage. Given a coin toss chance of survival by doctors, Kavanagh claims to have seen the other side when she saw her childhood डॉग्स। सोचिए, एक इंसान सिर्फ एक पल के लिए ज़िंदगी और मौत के बीच में। The Canadian psychic medium was watching a film with her family when she was suddenly struck with a crippling migraine. She retired to bed early but woke up to find herself unable to move to the right side of her body or see out for someone from her eyes. ये सिर्फ शुरुआत थी। She desperately altered her husband Michael by banging on the wall with the only arm she could move. He called an ambulance where paramedics told her she would had a double stroke and uncontrollable brain bleeding in her sleep, leaving her with 50% odds of survival. सोचिए, डॉक्टर्स ने बताया है कि आप जिंदा रहने के सिर्फ 50% चांसेस रखती हैं। During the ordeal, Kavanagh claims to have passed over the place we visit just before entering heaven, saying death was the most incredible thing that I have ever been through. और फिर एम्बर ने देखा वो जगह जहाँ सिर्फ सुकून और रोशनी है। There was no fear, only love. I looked like that, the best version of myself, and had everyone I had ever loved that was no longer with us around me, including my childhood dogs. But I had to make a choice if I wanted to be with my kids again or stay in the place where I felt peace like I had never done before. It was not really easy as it was like coming home. I did not want to leave. और वो जगह इतनी रियल और ख़ूबसूरत थी कि एम्बर ने कहा मैं वहाँ रहना चाहती थी, लेकिन फैमिली के लिए लौटना पड़ा। I have had to relearn everything, how to walk, talk and eat. It's put my family through hell and back, but now I don't fear dying or going over to the other side. I fear I won't be able to go back to that place again. सोचिए, ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक ऐसी जगह जहाँ से लौटना सबसे मुश्किल फ़ैसला हो। Amber says she did not feel scared during her ordeal. There was no going toward the light or people calling me. I was just watching over everything and everyone. It sounds bad, but I was not scared for my family as I knew everything was going to be okay. फिर भी उनके लिए सबसे स्केरी लम्हा वो था जब नर्सेज ने उनके बच्चों से कहा, Say everything you want now to say to your mom, as you probably won't see her again. I heard everyone saying their goodbyes and crying, not knowing that I was still there. It's still, to this day, one of the most terrifying things that I have ever experienced. और फिर एम्बर ने देखा अपना फिजिकल बॉडी नीचे और अपनी फैमिली उनके पास आती हुई। But there was such a deep rooted feeling of pure comfort knowing I had to leave this place that had an overwhelming glow of loving light was so difficult. वो जगह, वो रोशनी, वो सुकून। एम्बर कहती है कि कभी वो नहीं इसको भूल सकती। Kavanagh said that she was presented with two options by her spirit guides: stay and burden her family or return to endure the recovery process. She chose to come back. Since the double stroke, Kavanagh has had to relearn basic functions, take physiotherapy and undergo speech therapy as well.
She says her life has largely returned to normal, with the only physical side effect being a light numbness on the right side of her body. Amber reflected, "I have learned a lifetime worth of patience. There's more to life than society's expectations of humans, and there's a proof that we're not alone. On the other side, there's a squad of loved ones cheering us on every day." सोचिए, एक पल के लिए आप मौत के सामने होते हैं और फिर वापस आ जाएं। जिंदगी की असल वैल्यू तब समझ आती है। I have been stripped down and had to build myself back up again. It's been horrible but humbling. My family and I are much closer and we don't take life so seriously. It's made me appreciate the beauty of life and has given me a new perspective. सियालकोट स्टेलियंस से मुल्तान सुल्तान्स, ब्रांड कमबैक है या एक बिजनेस मूव? आज की दूसरी खबर क्रिकेट से है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं है। ये स्टोरी है आइडेंटिटी की, बिजनेस स्ट्रैटेजी की और पीएसएल के बदलते हुए लैंडस्केप की। जो फ्रेंचाइज हमने सियालकोट स्टेलियंस के नाम से सुना था, अब ऑफिशियली मुल्तान सुल्तान्स के नाम से खेलेगी। इस चेंज को अप्रूव किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो पीएसएल को गवर्न करता है और हर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को ओवरसी भी करता है। सबसे सियालकोट बेस्ड स्लॉट ऑक्शन हुआ था तो 185 करोड़ पर ईयर की कमिटमेंट के साथ राइट्स सिक्योर किए गए थे। उस वक्त ये लीग की मोस्ट एक्सपेंसिव डील्स में से थी, लेकिन ऑक्शन के बाद ऑनरशिप ग्रुप के अंदर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो गई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल प्रेशर्स आए, जिसके बाद स्टेक ट्रांसफ़र की नेगोशिएशंस हुई। यहाँ एंट्री होती है सीडी वेंचर्स की। इस कंपनी ने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया और गौहर शाह को सीईओ अपॉइंट किया गया है। न्यू लीडरशिप ने पीसीबी को फॉर्मली ये रिक्वेस्ट किया है कि फ्रेंचाइज के नाम चेंज करके मुल्तान सुल्तान्स कर दिया जाए। पीसीबी ने ऑनरशिप स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल गारंटीज रिव्यू करने के बाद इस रिक्वेस्ट को अब अप्रूव कर दिया है। यहाँ से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुल्तान सुल्तान्स कोई नया नाम नहीं है। ये टीम 2018 में पीएसएल का हिस्सा बनी थी, 2021 में चैंपियन भी रही और उसके बाद कंसिस्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग टीम रही। साउथ पंजाब में इनका फैन बेस ग्रो करता गया, स्पॉन्सर्स अटैच्ड हुए और एक सॉलिड कमर्शियल आइडेंटिटी डेवलप हुई। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक एस्टेब्लिश ब्रांड को रिवाइव करना जीरो से नया ब्रांड बिल्ड करने से ज़्यादा सेफ होता है। फैंस ऑलरेडी इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, मर्चेंडाइज और स्पॉन्सर वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, मतलब मार्केटिंग रिस्क कम हो जाता है और कमर्शियल रिटर्न आसानी से मिल सकता है। इस रीब्रांडिंग के साथ एनुअल फ्रेंचाइज फी भी 185 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक कर दी गई है। ये इंक्रीज एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, या तो इवैल्यूएशन रिवाइज हुई है या पीसीबी को न्यू ऑनरशिप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या दोनों भी हो सकते हैं। पीएसएल फ्रेंचाइजेज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होती हैं, इसलिए ये स्टेप एक फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल का इंडिकेटर भी है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हों, टिकट सेल्स हों या डिजिटल एक्सपेंशन। रीजनल एंगल भी इंपॉर्टेंट है। सियालकोट का अपना क्रिकेटिंग हेरिटेज है और हिस्टोरिकली नेशनल लेवल प्लेयर्स प्रोड्यूस करता रहा है। मुल्तान ने पीएसएल के थ्रू अपनी स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी मेंटेन की है। साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन सिंबल बन चुकी है। ऑनरशिप ग्रुप ने क्लियरली एवेल्यूएट किया कि कमर्शियल और फैन एंगेजमेंट पोटेंशियल मुल्तान ब्रांड के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंस का एक नेचुरल सवाल ये भी है कि क्या ये रीनेम्ड फ्रेंचाइज प्रीवियस मुल्तान सुल्तान्स के रिकॉर्ड्स और 2021 चैंपियनशिप को भी इनहेरिट करेगी। जनरली फ्रेंचाइज लीग्स में अगर गवर्निंग बोर्ड अप्रूव करे तो ब्रांड कंटिन्यूटी इसी तरह ट्रीट होती है, चाहे ऑनरशिप चेंज हो या नहीं। पीसीबी के अप्रूवल से ये सिग्नल भी मिलता है कि लीग का स्ट्रक्चर अंदर से मुल्तान सुल्तान्स की आइडेंटिटी को कंटिन्यू करने जा रहा है। अगर थोड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो दुनिया भर की T20 लीग्स में ये कॉमन पैटर्न है। टीम्स ऑनरशिप चेंज करती हैं, सिटीज़ शिफ्ट हो जाते हैं, ब्रांड नेम्स इवॉल्व कर जाते हैं। क्रिकेट ग्राउंड पर जो होता है वो एक साइड है, लेकिन बोर्ड रूम में जो डिसीजंस होते हैं वो भी
इक्वली पावरफुल होते हैं। ये मूव पीएसएल की मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लीग अब सिर्फ मैचेस तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड कमर्शियल इकोसिस्टम बन चुकी है, जहां ब्रांडिंग, इवैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। अब असली टेस्ट ग्राउंड पर होगा। नाम वापस आ गया है, ब्रांड रिवाइव हो गया है, फी बढ़ गई है, लेकिन फैंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब भी वही है, जो कि है परफॉर्मेंस। देखते हैं मुल्तान सुल्तान्स का ये कमबैक सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस होता है या फिर ट्रॉफी भी वापस आती है। आज के दोनों सेगमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन एक अजीब सी सिमिलैरिटी भी है। एम्बर कवाना की कहानी हमें ये बताती है कि जब इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ा होता है तो उसे सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है वो समझ आती है। फैमिली, वक्त और सिंपली शायद सांस लेने की नेमत की। उनका कमबैक फिजिकल भी था और इमोशनल भी, लेकिन उसके साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी। और फिर पीएसएल की दुनिया में मुल्तान सुल्तान्स का कमबैक है। यहाँ इमोशंस के साथ बिजनेस कैलकुलेशंस भी हैं। ब्रांड आइडेंटिटी, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, रीजनल लॉयल्टी सब मिलकर एक नई डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। एक कहानी में इंसान ने चूज़ किया है वापस आना, और दूसरी में एक ब्रांड ने चूज़ किया है वापस आना। ज़िंदगी हो या स्पोर्ट्स, एक चीज़ कॉमन होती है, सेकंड चांसेस। कभी वो हॉस्पिटल के बेड पर मिलते हैं और कभी बोर्ड रूम के टेबल पर। शायद आज का सबसे बड़ा लेसन यही है कि हर एंडिंग फाइनल नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। I will catch you in the next episode. तब तक take care. Allah Hafiz.